Points for discussion on the Appropriation Bill 2021 in the Assembly. Before I speak on the Appropriation Bill 2021, I would like to congratulate the Honorable Chief Minister Janab K. Chandrasekhar Rao Sahab, Honorable Speaker Sahab, Legislative Affairs Minister Sahab, and all other Honorable Ministers for the successful conduct of the budget section. Apart from the debate on the motion of the thanks for the government address and the general discussion on the state budget, we had fruitful discussion on all 40 demands for grants which were passed by the Assembly last night. In the deliberation of the Legislative Assembly over 9 days of sittings, our party members raised many issues while participating in discussions in government address, budget and the 40 demands for grants. Speaker sir, the minister concerned also replied to many of the issues raised by our members. We also got the opportunity to raise several important issues during the question hour and the zero hour. Finance Minister had presented supplementary estimate of expenditure for the year 2021 with an outlay of rupees 24,745 crores. The supplementary estimates covering all 40 demands, providing for reallocations and reappropriations for various heads of accounts within the demands for the grants under the budget estimate for 2021. Speaker sir, in the same sense, these supplementary estimates do not cause any additional burden on the state exchequer as the Finance Minister Sahab has already given figures of the revised estimate for 2021 while presenting the budget for 2021-22. As it has been practiced in the previous budget section, the government has tabled 13 CAG reports relating to the year 2017-18, 18-19, 19-20 on the last day of the sitting today. I do not know what purpose is served by the tabling CAG report on the last day, as there is hardly any time for the members to go through this voluminous reports and study their findings. There are few issues raised by our members during the discussion on the demands for the grants, and the minister concerned have not responded to this. This is the reason I would like to raise them again to seek the response of the government. Sir, डिमांड्स में भी बोले, गवर्नर के एड्रेस में भी बोले, मेट्रो ट्रेन जो ओल्ड सिटी में आना है फ्रॉम इमली वन टू फलकनुमा, मिनिस्टर साहब ठहर कर यहाँ पर जवाब कोई वजह की नहीं दिए, कब से स्टार्ट हो रहा उसका टाइम नहीं बोले। मैं आपके ज़रिए चीफ मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, फेस 1 के अंदर ओल्ड सिटी है सर, फेस 1 के अंदर इमली वन से लेकर फलकनुमा तक मेट्रो ट्रेन है, वो मेट्रो ट्रेन कब चालू होगी? सुनने में आ रहा सर हाईटेक सिटी से लेकर शमशाबाद एयरपोर्ट तक 1000 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुके हैं, वहाँ का सेकंड फेज़ का काम चालू हो रहा। जब फर्स्ट फेज़ कंप्लीट नहीं हुआ, सेकंड फेज़ कैसा चालू करते सर? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि आप इमीडिएटली मेट्रो ट्रेन का फर्स्ट फेज़ का काम जो इमली वन से लेकर फलकनुमा तक बाकी है उसको इमीडिएटली चालू कराइए। सेकंड चीज़ सर, लास्ट बरसात के दिनों के अंदर बरसात हुई थी, हैदराबाद शहर तकरीबन हर जगह पानी भर चुका था। जैसा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, चंद्रायनगुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी थी, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी थी, मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी थी, हर जगह तकरीबन पानी आने की तरफ एक अच्छा इकदाम गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, कि इमीडिएटली जितने भी घरों में पानी जा चुका है उस सारे घरों के उस लोगों को 10-10 हज़ार रुपये दिया जाएगा। पार्शियली डैमेज जो मकानात हुए हैं उनको 50,000 रुपये दिया जाएगा, जो फुली डैमेज मकानात है उनको 1 लाख रुपये दिया जाएगा। मैं आपके ज़रिए चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। आप चीफ मिनिस्टर साहब के अनाउंसमेंट के बाद हज़ारों लोगों के अंदर 10,000 रुपये की तकसीम हुई है, ये लाखों में दिए गया है, मगर आज तक भी जो पार्शियली डैमेज हुआ था, जो फुली डैमेज मकानात हुए थे, जो लोग अपने 10,000 रुपये जिसको नहीं मिले थे, वो लोग जो ऑनलाइन कर चुके थे, वो लोगों को आज तक भी रिलीफ नहीं मिला है। मैं आपके ज़रिए चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, जो फ्लड्स के अंदर जो तबाही हुई थी, वो जो सारे लोगों को जो बाकी है देने का, वो तमाम लोगों को इमदाद दीजिए और उन लोगों की मदद कीजिए।
Sir, our party, while fully supporting to the enactment of the new revenue acts, had suggested to the government to allow one-time registration of the notarized document in the old city of Hyderabad, as also other centers in Telangana state on nominal rates on the lines of Sada Bainama for the agricultural lands. These measures will be enabled to sale on purchase of these properties on plots under the Dharani portal, and in the absence of this, the property owners cannot transact any सेल. सर, और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ सर, ओल्ड सिटी के अंदर तकरीबन जितने भी जायदादें हैं नोटराइज डॉक्यूमेंट्स है, और लास्ट सेक्शन में चीफ मिनिस्टर साहब ठहर कर हमारे जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के इसी सवाल के ऊपर कहे थे कि हम इमीडिएटली जितने भी नोटराइज डॉक्यूमेंट्स हैं उस सारे नोटराइज डॉक्यूमेंट्स को लीगली रजिस्टर्ड करने के लिए हम एक निकालेंगे, उसका रेगुलाइज करने के लिए क्या बोलते सो, और रजिस्ट्री वन टाइम सेटलमेंट करने के लिए वो भी करेंगे बोल के चीफ मिनिस्टर साहब वायदा करे थे. मैं आपके ज़रिए चीफ मिनिस्टर साहब से ये कहना चाह रहा हूँ सर, ओल्ड सिटी कई 80% पुराने शहर में आप नोटराइज डॉक्यूमेंट्स है. आज लोग इंतज़ार में हैं गवर्नमेंट के ऑर्डर के लिए कि वो लोग अपने प्रॉपर्टी नोटराइज प्रॉपर्टीज़ को रजिस्ट्री करा सके. जो अपार्टमेंट्स है, जो फ्लैट्स है, जो प्लॉट्स है, जो आज रजिस्ट्री नहीं हो रही है, उन लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है. मैं आपके ज़रिए चीफ मिनिस्टर साहब से ख्वाहिश करना चाहता हूं कि आप इमीडिएटली ऑर्डर्स निकालिए और पुराने शहर के लोगों को मदद करिए सर. व्हेन द रेवेन्यू बिल वॉज डिबेटेड, AIMM follow leader Janab Akbaruddin Owaisi has suggested to the government to come up with a few land regularization schemes on the line of GO 58 and 59 introduce modified layout regularizations, building regularization schemes, allow one-time registrations of notarized documents, and facilitate the facility for the levy of the property tax on nominal rates before the Dharani schemes and TSB pass schemes are implemented for the online registration of the properties and one online clearance of the building permission. The Honorable Chief Minister Sahab has assured to look into these 5 demands, but not such has been done in this regard, thereby causing hardship to the property owners to sell their properties through Dharani portal or to seek building permission for new construction or renovation of the extensions. I would request the government to see that these issues are sorted out early. I may point out that electoral promise of the TRS at the time of December 2018 assembly election for lowering the eligibility age for the old age pension from 65 years to 57 years is yet to be implemented. The lowering age criteria will benefit lack of elderly men and women in the state. I would request the government to issue orders for reducing the eligibility age for the old age pension to 57 years, implementing the scheme from April 1 to 2021. सर, और एक चीज़ मैं आपके ज़रिए गवर्नमेंट से कहना चाह रहा हूँ सर, मक्का मस्जिद है, शाही मस्जिद है, यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तकरीबन पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, मगर आज की तारीख तक भी वो एम्प्लॉयज़ को परमानेंट नहीं किया गया है. जैसा शाही मस्जिद के अंदर 6 एम्प्लॉयज़ है और बाकी के एम्प्लॉयज़ मक्का मस्जिद में है. मैं और शाही मस्जिद और मक्का मस्जिद को तो फंड दिए हैं सर, शाही मस्जिद को भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि गवर्नमेंट को क्या बोलते हो तो वहाँ पर भी फंड्स रिलीज़ करिए. और आपसे गुजारिश करता हूं सर कि आप इमीडिएटली ये जो एम्प्लॉयज़ है ये सारे एम्प्लॉयज़ को रेगुलाइज करिए. हमारे जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ऑलरेडी इस ताल्लुक से चीफ मिनिस्टर साहब से रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं. और एक सर, जो पिछले बरसात के अंदर जो तबाही हुई थी हैदराबाद में, दुर्गम चेरू तालाब का बंद टूटने की तरफ से और पल्ला चेरू बंद का टूटने की तरफ से हुआ था सर. और गवर्नमेंट नाला वाइडनिंग करने के लिए, नाला एक्सटेंड करने के लिए, नाला बनाने के लिए 130 करोड़ रुपए सैंक्शन कर चुकी है. मगर 130 करोड़ रुपए जब गवर्नमेंट सैंक्शन कर चुकी है, ये फंड्स अब तक रिलीज नहीं हुए हैं और वो काम आज तक चालू नहीं हुआ है. तो मैं आपके ज़रिए चीफ मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूं कि इमीडिएटली वो फंड्स को रिलीज करिए तो इस काम मुकम्मल हो सकते हैं और आने वाली बरसात के अंदर आवाम को तकलीफ ना हो सके. और एक सर, कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 290 करोड़ रुपए
सीवर के लिए सैंक्शन हो चुके हैं, मगर अमाउंट रिलीज नहीं हो रहा है। चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 130 करोड़ रुपए नाला वाइडनिंग और नाले को बनाने के लिए सैंक्शन हो चुके हैं, वो भी आज तक अमाउंट रिलीज नहीं कर रहे हैं सर। तो मैं आपके जरिए वो भी कहूंगा सर, और खास तौर से सर मुझे अफसोस के संगात इस असेंबली में ठहरकर आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना पड़ रहा है सर, के.टी. रामाराव साहब की मिनिस्ट्री के अंदर शहर हैदराबाद में एक बेहतरीन तरक्की हो रही है, एक मॉडल शहर बन रहा है, एक एडवांस शहर बन रहा है, मगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी इसी शहर में आती है, बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी। 2016 के अंदर के.टी. रामाराव साहब के संगात एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया था बहादुरपुरा फ्लाईओवर ब्रिज का। आज 2020 आ चुका। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.